ప్రజలందరూ కలిసి ఉండాలంటారు, ప్రజల మద్దతు కావాలంటారు, ప్రజల సంక్షేమాన్ని కోరుకోవాలి మనం అనుకుంటాం సిద్ధాంతం ప్రకారం. కానీ మనుషులను ద్వేషించేటువంటి రాజకీయాలు, those who hate the people, they are spreading hatred. మనుషుల మధ్యన దేశభావన పెంచడం, बीच में जो है आत्मा का जो ध्यान देवता के बीच में जो है ये देश भावना, ये जो उन्होंने फैला है, इसको हम क्या, ये सवाल हमारे सामने है। राज्यांग भारत का जो संविधान है वो तो अच्छा वैल्यू है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव गुड वैल्यूज, respect the constitution, but the basic values, liberty, human being should have freedom, స్వేచ్ఛ ఉండాలి, మనుషులు స్వేచ్ఛగా జీవించాలి. ఈ లేకపోతే ఇంకా దీనికంటే మించిన వీళ్ళు ఉంటా, మనుషులు ఉంటా స్వేచ్ఛగా జీవించాలి, ఒక స్వతంత్రమైనటువంటి ఒక వాతావరణంలో జీవించాలి. ఈక్వాలిటీ, సమభావన, మనుషులంతా సమానం. Having been born as human beings, all of us are equal. Everybody is a human being with a dignity, with self-respect. ప్రతి మనిషి మనిషిగా పుట్టినందుకు ఒక గౌరవంతో, ఎందుకంటే మనిషి మిగతా జీవరాశిగా భిన్నమైన వాడు. మనిషి అది అన్ని రాసులాగా జీవించదు, భిన్నంగా జీవిస్తుంది. ఈ మనిషి మనిషిగా జీవించడం ఎట్లా, ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని మనిషిగా చూడడం ఎట్లా, దీస్ వాల్యూస్ అంటే ఈక్వాలిటీ, సమాభావన. సమభావన అంటే మనుషులంతా సమానం, సమాన అవకాశాలు, సమానమైనటువంటి అంటే అభివృద్ధి, సమానంగా ఎదగాలి. ప్రతి మనిషిలో ఉండేటువంటి ఒక సృజనాత్మక ఏదైతుందో అది సంపూర్ణంగా ఎదగాలి. ప్రతి మనిషి పుట్టినవాడు చనిపోయే లోపల సంపూర్ణమైన మనిషిగా ఎదిగేటువంటి ఒక స్వతంత్రమైనటువంటి సమాజం కావాలి. సొసైటీ విచ్ ఇస్ కండ్యూసివ్ ఫర్ ఫుల్ రియలైजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन। आत्मा में जो सत्ता रहती है, आत्मा में जो क्रिएटिविटी रहती है, उसका जो है पूरा जो फल है, जो पूरा उसका विकास है, ऐसा समाज हमारा निर्माण करना है। भारत का संविधान ऐसा एक विजन दिए हैं हमारे, मगर आज जो रूलर्स है वो रूलर्स ये कर रहे हैं कि उसका हाउ टू डिस्ट्रॉय दोस वैल्यूज, बिकॉज ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है, जो आज एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, पहले कैपिटलिज्म के पहले थोड़ा सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, सोशल डेमोक्रेसी के बारे में कैपिटलिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म का फिलॉसफी आपको एक मैं संक्षिप्त में कहूंगा कि न्यू लिबरलिज्म इज ए फिलॉसफी which believes that human beings should be not the human beings are human beings should be driven by selfishness, not self-interest. Adam Smith said self-interest, but Adam Smith also said that there are moral sentiments. Human being का एक जो selfishness है, कि human being का self-interest, स्वप्रयोजन जो है, ऐसे मनुष्यों ఒక రకమైనటువంటి స్వప్రయోజనం ఉంటుంది. కానీ ఇవాళ ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వి మూవ్ టు సెల్ఫిష్నెస్ అండ్ Ayn Rand they are going on publishing books in defense of selfishness. स्वार्थ जो है अच्छा चीज होते हैं, ऐसा फिलॉसफी आ गया। स्वार्थ जो अच्छा होता है, स्वार्थ से ही जीना चाहिए। दूसरे आदमी के बारे में जो कंसर्न है, पाप विचार जो होते हैं, वो आदमी ही नहीं, वो तो उसका खुद आत्मा है, ह्यूमन बीइंग नहीं, वो बहुत पाप विचार, बहुत इनकम्प्लीट इनएडिक्वेट ह्यूमन बीइंग। అక్కడ ఏమంటున్నారంటే స్వార్థం లేనటువంటి మనిషి వాడు సంపూర్ణంగా జీవించడం లేదు. స్వార్థపూరితమైన మనిషే వాడు విధంగా జీవిస్తున్నాడు. మిగతా మనుషుల గురించి పట్టించుకున్న వాడు ఎవరైతున్నారో ఆ మనిషి వాడికి చాలా బలహీనతలు ఉంటాయి, చాలా బలహీనుడు అయినటువంటి మనిషి అయ్యో పాపం అంటారు. కానీ నిజంగా తనలో తనకి విశ్వాసం ఉండి సంపూర్ణ మనిషి వాడు స్వార్థంతో a very dangerous shift in the philosophy, a dangerous shift in the very philosophy of the human society. This is the danger of the neoliberalism. Now that neoliberalism has entered India. Constitution of India, when it was being framed, that was not the philosophy. Social equality, fraternity, liberty, egalitarianism. Then constitution, I always want of quoting that Article 38 of the Indian Constitution. What does it say? Reduce inequalities in income, status, opportunities, facilities. What does Article 39 say? Article 39 says the means of production
means of production should not be monopolized in few hands. Well, should not become detrimental to the common good. భారత రాజ్యాంగం ఏమంటున్నదంటే అన్ని రకాల అసమానతలు తగ్గించాలి. అన్ని రకాలు అంటే ఎలాంటివి? అంతస్తుల్లో, ఆదాయాల్లో, అవకాశాల్లో, సౌకర్యాల్లో అన్ని రకాల అసమానత తగ్గించాలి. వాటికి కఠినమైనటువంటి అంటే ఉత్పత్తి సాధనాలు కొందరి చేతిలో కేంద్రీకృతం కాకుండా ఉత్పత్తి సాధనాలు, దేశంలో ఉండే సంపద అందరి సర్వ ప్రయోజనానికి పనికి రావాలి. కానీ సంపద సామాజిక ప్రయోజనానికి అది प्रमादकर सामाजिक जो संपत्ति देश में वो जो होते हैं वो संपत्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पत्ति का साधन है, जो है वो साधन जो है किसी फ्यू हैंड्स में तो थोड़े से लोग हाथ में नहीं, कि जो संपत्ति जो है साधारण जनता के लिए वो यूज करना है, उसका उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. It means of production should not be that. It's almost like Marxism, saying that the means of production, how the means of production ultimately have control over the people. This is there in the Constitution of India. I'm not quoting Marx, I'm quoting Constitution of India. अब भारत का संविधान में ये जो असमानता हम कम करना है और ये जो देश का संपत्ति सब लोगों के लिए, सबका प्रयोजन के लिए काम आना चाहिए, ये क्या हो गया? ये मूल सिद्धांत क्या हो? आज और जो लिबरलिज्म जो है, आज जो रूलिंग क्लासेस ऑफ इंडिया जो सत्ता में है, ये जो पहले कांग्रेस वाले 2004 से शुरू करे तो 1991 से शुरू हो गए. 1983 में हम लोन लिए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी से. जब लोन लिए 83 में आपको मंडल कमीशन का एक समस्या आ गया और लोगों का पूरा डाइवर्ट करे. 1991 में जब ये जो विश्व बैंक और ये जो न्यूलिबरल का फिलॉसफी जो है जब वो पूरा हम अमल करे, जब जो है रथ यात्रा शुरू. रथ यात्रा को और ये जो न्यूलिबरलिज्म का काफी संबंध है. क्यों लोग रथ यात्रा करे? राम जन्मभूमि के बारे में जो बात करते हैं, आज हिंदू राष्ट्र के बारे में करते, हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं. दिस इज कंप्लीटली डाइवर्टेड द अटेंशन ऑफ Neoliberalism wants to monopolize Adani, Ambani, तो लोग जो है संपत्ति उनको, और ये जो विश्वास जो है, ये जो रिलीजन है, रिलीजन है, राम कहते वो आपको भगवान आपके लिए पैसे उपलब्ध, संपत्ति उपलब्ध. तो अगर आप इसको अदानी, अंबानी और इन लोगों के अगर उनका पैसे, उनका जो संपत्ति बढ़ रहे, तो हम आप और हम बात करते हैं ना, क्यों उसके पास संपत्ति है, लोगों के पास क्यों गरीबी है, क्यों जो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों लोगों के लिए उनका अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे. भारत का संविधान में तो लिखे ना. तो ये पूछने का जो चैतन्य, जो कॉन्शियसनेस है, उसको अगर दबाना है तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों को आप पूरा डिवाइड करो, नफरत फैलाओ, एक आदमी दूसरे आदमी मरे, एक कास्ट के दूसरे कास्ट पर अटैक करे, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर अटैक करे और लिंचिंग करे कैमरा के सामने. तो आदमी को जो लिंचिंग कर रहे हैं, कैमरा वाले उधर बैठ के वो ले रहे पिक्चर. हमारा पोती 7 साल के है, वो देखते कह रहे कि ये कैमरा वाले तो है, वो फोटो लेने के बजाय जाके उसको बंद कर सकते ना, उसको रोक सकते ना. मनाला ఏమంటుందంటే వాడి కారణంగా చంపుతుంటే ఫోటో తీసుకొని 10 మంది సహాయం చేస్తారు, ఫోటో తీసుకొని మనుషులు ఎక్కైపోయారు. సో దిస్ లింचिंग दैट इज टेकिंग प्लेस, वो काउ के बारे में बोल रहे, कोई बीफ खाने के बारे में बोल रहे, कुछ प्रीटेक्स्ट है, वो बीफ है या नहीं पता नहीं, पर जो जाके उनको मार रहे, उसको जाकर पुलिस को देना, कंप्लेंट देना, ये सब उन लोगों को, ये पुलिस वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ, इन लोगों को कुछ उसके ऊपर रिस्पेक्ट डायरेक्टली उन लोगों का एक्शन करते हैं. अब जब पीपल, अब तो ये ऐसे लोग जो है जब एक्शन डायरेक्टली लेना शुरू करते, संविधान क्या होगा, रूल ऑफ लॉ क्या होगा, पुलिस का क्या होगा, जुडिशियरी क्या होगा, अब आप ही एक्शन ले रहे हैं ना डायरेक्टली. संविधान, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियरी सब ऐसे है. एक आदमी अगर गलत करे दूसरे आदमी के ऊपर, ये दूसरे आदमी जो है जाके कंप्लेंट करे, तो स्टेट विल टेक, बिकॉज़ स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट आवर राइट. दैट्स द फिलॉसफी, इट इज इन थियरी.
राष्ट्र का उद्देश्य क्या होते हैं? भाई ह्यूमन बीइंग बिल्ड द स्टेट, theoretically the state has to provide security to human being, उसका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्टेट जो है इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग से प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी, एक आदमी जाके दूसरा आदमी को मार रहे हैं और स्टेट उसका मदद में आ रहा है। अब स्टेट का फंक्शन ही खत्म हो गया। ह्यूमन बीइंग व्हाई दे हैव बिल्ट अ स्टेट, हमें राज निर्माण करते हैं ह्यूमन का हिस्ट्री में तो स्टेट आए हैं। ये स्टेट का पर्पस जो है, उसका पर्पस ये हुआ कि लोगों अनार्की, जो लोग जो है हिंसा कर रहे हैं, जो लोग नफरत फैला रहे, ये स्टेट जो है उसमें पार्ट करता है वायलेंस एंड इट टॉलरेट्स एंड इट अप्रूव्स, इट एंडोर्सेस, समटाइम्स इट रिस्पेक्ट्स दोस पीपल जो मूल सिद्धांतों पर जो हमला कर रहे हैं। जो राज्य जो है उसको ऊपर एक्शन लेने के बजाय जो उसका पीछे वो सपोर्ट कर रहे। अब हम क्या करें? कैसा इनको सेव करें? माइनॉरिटीज, दलित का ऊपर तो इतना हमला हो रहा है कि हम वो आज जो है छोड़ नहीं सकते, इतना हमला हो रहा है। थोड़ा थोड़ा मीडिया में आ रहे हैं और हर एक गाँव में जो है जो दलित के ऊपर जो हिंसा चल रहा है। आज जो सत्ता में है उन लोगों का कास्ट सिस्टम होना चाहिए, वर्ण धर्म होना चाहिए, पुराना मनुस्मृति होना चाहिए, भारत पीछे जाना चाहिए। और उन लोग ये समझते हैं कि वो जो है संविधान, भारत का जो मनुस्मृति है वो संविधान होना था। संविधान जब हम हमारा देश में राज्यांगों का कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क हुआ और राज्यांग हम तैयार करें तो मनुस्मृति मानने वाले को लेके राज्यांग हमारा संविधान हमारा संविधान हम नहीं मानते, भारत का संविधान नहीं है। ऐसे लोग जो है आज सत्ता में, वो जब सत्ता में आ गए उन लोग राज्यांग का संविधान के रिस्पेक्ट नहीं, राज्यांग होगी ये तो गौरव लेదంటే ఈ రాజ్యాంగం మరి కాదంటున్నారు, ఈ రాజ్యాంగం అంటే మనుస్మృతి కాకుండా వారి మధ్య ఒక సర్కులర్ పంపిస్తారు आरएसएस लोग सर्कुलर के स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें ये लिखे अगर मर्द जो है बीवी को मारे, उसको पीटे तो औरत क्या करना चाहिए? और ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो महिला पाप करे हैं, आज उसका मर्द जो है उसको मार के उसको पीट के उसको वो पाप से विमुक्त करती है, इसीलिए उसको ग्रेटफुल करते हैं। तो अड़ियमंतला అంటే భార్య కొడితే భర్త తాను పూర్వజన్మలో చేసిన పాప విముక్తి చేస్తున్నాడు కాబట్టి, భర్త తనను విముక్తి చేస్తున్నాడు కాబట్టి భర్తకు రుణపడి ఉంటాడు. Ideally, that if a husband beats the wife, they are saying that whatever sins she committed in the previous life, the husband is liberating her from that sin, and therefore she should be grateful to the husband for beating her. Manu has written how to beat the wife. He says you must beat the wife with a split bamboo stick, not with bamboo stick, but split bamboo stick. అంటే మన కట్టెని విరుచుకోవద్దు, ఎందుకంటే కట్టెతో కొడితే దిబ్బైపోతే విరిచి దాన్ని బాంబూ స్టిక్ ని దాన్ని ముక్క చేసుకోవద్దు, అంత దుర్మార్గంగా అది మనస్ఫూర్తి మనస్ఫూర్తి. That's why I think we have to be very careful that what is happening today. These attacks are going on, but all this is happening in the society in order to create a climate of fear. ఒక భయానకమైన वातावरण, ऐसा माहौल कि लोग डरना चाहिए, पूरा समाज में डरना है, समाज में डरना है। अगर डरे ना तो बात नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते, रेसिस्टेंस नहीं करते। अब न्यू लिबरलिज्म का जो पॉलिसी जो है वो लोग जो है ऐसा अमल करते थे, कोई बात नहीं पूछे, अगर आपको खाना होना चाहिए, खाना नहीं मिला, आप गरीबी से मर रहे, मरने दो, आप लाकर अनाउंस करके लोग जो है पैदल 100 माइल 200 माइल वो पैदल चल जा रहे, ऊपर वो रखे और नीचे जो बच्चा है वो पागल ना हो
बच्चों को देखते जाए, किसी को पता नहीं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड बिकॉज सफरिंग दे थिंक इज अ पार्ट ऑफ యువర్ సిన్స్. మీరు చేసిన పాపాలకు సఫరింగ్ అనుకుంటున్నాను. మనం పని చేయాలి, రాజ్యాంగం మనకు బాధ్యత ఇచ్చింది, రాజ్యాంగంలో కొన్ని విలువలు ఉన్నాయి, ఆ విలువలను మనం కాపాడాలని అనుకోవడం లేదు. పావర్టీ అనేది ఉందో అది నువ్వు పూర్వ జన్మలో చేసినందుకు నీకు ఆ పావర్టీ కనుక నువ్వు పావర్టీ అంటే దట్స్ వాట్ దే హావ్ కమ్ టు రిజైన్ టు ది బేసిక్ వాల్యూస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ సొసైటీ. హియర్ ఇన్ సచ్ ఎ హిస్టారికల్ క్రిటికల్ స్టేజ్, చరిత్రలో చాలా కీలకమైన దశలో ఉంది. కనుక ఇవాళ ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ సమావేశం ఏదైతే ఈ సమావేశం ద్వారా మనం చేయవలసింది ఏంటంటే, ఒకటి మన వ్యక్తిగత జీవితం, మన రోజు నివసించే జీవితం, మనము భారత రాజ్యాంగంలో చెప్పిన కొన్ని విలువల్ని మనము వాటిని ఆచరిస్తున్నాము. మనతో మనం పోరాడవలసింది చాలా ఉంది. We have to struggle with our own self, number one. Then supporting all the struggles of the people for higher values. Adivasis of this country should be grateful to them. Adivasis of this country have been struggling for democratic values for last 200 years. So for 200 years they have been struggling. Adivasi ఈ దేశంలో గత 200 సంవత్సరాల పోరాటాలు చేస్తున్నారు. తమ సంపద యొక్క వాటిని కొరతాయి, హరిమను కాపాడడం కొరతాయి. వారు చేసిన పోరాటాలు అవి అద్భుతమైన పోరాటాలు చేశారు, ఇంకా పోరాటాలు చేస్తున్నారు. అలాంటి ఆదివాసులు ఎవరైతే తమ అడవిని రక్షించుకోవడానికి, తమ సంపద రక్షించు, దేశ సంపద రక్షించడానికి చేస్తున్న పోరాటం షెడ్యూల్ 5 in the Indian Constitution, protecting the rights of the tribals. PISA is there, Land Acquisition Act is there. There are several acts which have passed because of struggles. But on the ground, today if you go to Chhattisgarh, if you go to Jharkhand, if you go to Central Bihar, if you go to Gadchiroli, if you go to Telangana, if you go to Andhra, if you go to West Bengal, if you go to Kerala, there are struggles. There are Adivasi struggles, there are Dalit struggles, there are women struggles, there are minority struggles, there are farmer struggles. There are struggles. What is that we can do? మనం చేయాలి. ఈ ఉద్యమాలు అయితే పోరాటాలు వేస్తూ వాటికి మన నైతిక మద్దతు, మన మద్దతు వాళ్ళకి ఆ పోరాటాల్లో ఉండేటువంటి దాని యొక్క స్వభావాన్ని, దాని లక్ష్యాన్ని, వాళ్ళు ఎందుకు పోరాటం చేస్తున్నారు దాని మిగతా సమాజానికి చెప్పి సమాజంలో దానికి కావాల్సినటువంటి ఒక మద్దతుని మనం సాధించాలి. दोस्तों हम क्या करना है, जो स्ट्रगल चल रहा है आदिवासी का, दलित का, वुमेन का जो स्ट्रगल्स है, हम हर एक आदमी जो है वो स्ट्रगल्स में जो पॉजिटिवनेस है, जो स्ट्रगल्स कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज के लिए स्ट्रगल हो रहे, उसका हम समझ देना है, मदद देने के लिए लोगों को हम एजुकेट करना है. ये जो है हिस्टोरिक टास्क जो है हमारे ऊपर. इसीलिए आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे जो फैनेटिक्स अटैक कर रहे हैं, वो बजरंग दल होने दीजिए, विश्व हिंदू परिषद होने दीजिए, वो सनातन धर्म संस्थाओं में जो जुड़े, एक बात आप सोचना चाहिए कि ये इधर खत्म हुआ स्टॉप नहीं होगा, ये हमारे तक आएगा जरूर. तो इधर का अगर पढ़े फैसिज्म और पढ़े वो फैसिज्म जो है एक जगह रोकते नहीं, वो चलते रहते, हमारे तक आते हो. इसीलिए जो है हमारे को क्या करना है, क्या छत्तीसगढ़ में स्ट्रगल चल रहे, वो स्ट्रगल उधर स्टॉप नहीं होता. जब हम एनकाउंटर के बारे में हमारा सिविल लिबर्टीज कमेटी में जब बात करें, 50 साल से बात करें, हम लोगों को एक बात बोल रहे हैं कि जो आदिवासी का जो स्ट्रगल के ऊपर एनकाउंटर का जो हो रहे वो इलीगल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है. अगर आप साइलेंट है तो आप तक आ जाए. क्या हुआ, वो गौरी लंकेश के पास आ गया, वो संसारी के पास आ गया, कलबुर्गी जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वैष्णव था, उनको मारे. क्यों मारे? वो तो नक्सलिस्ट नहीं है ना. तो गौरी लंकेश तो इसके लिए वो तो बहुत नेगोशिएट करेंगे. क्यों मारे उन्होंने? हमारा तेलंगाना में जो है एक राष्ट्रनिष्ठ बच्चा है, उसको जो है सता है, काफी सता है. कोई दलित आदमी जो है टीचर, वो कंट्रीब्यूशन नहीं है गणेश चतुर्थी,
उनका कंट्रीब्यूशन है उसके पर्सन जाके उसको लेके जाके उनको एक टेम्पल को लेके जाके उसको भुट्टो तिलक लगा वो भी मैं ये ना सब मानने वाले हैं फिर भी वो प्रिंसिपल के पास गए और वो एक्सक्यूज बोलने के बाद भी ये केस रखे कितना हरास करे एक आदमी पर फ्रॉम चार वर्कर्स डाउनवर्ड्स एथिस्ट जो है अब आज भारत में वो एक फिलॉसफी है बुद्धिज्म में 6 फिलोसॉफिकल थॉट्स है और से लिखे बुद्धिज्म ऐसा नहीं कि एक ही गॉड एक ही नहीं है जब बीजेपी बंगाल गए हैं वो तो बोले हमारा तो गॉडेस दुर्गा है तो राम नहीं है तो अमृत से लिखे एक जगह उनके पोते को पूछे आपका गॉड कौन हो तो बोल दुर्गा होगी हम जो है ठीक है अब तो हमारा पिताजी तो राम का भक्त थे वो अलग बात मगर ये बात जो है कि एक गॉड को लेके जाके आप लोग जो है तो पूरा ये जो ना डाइवर्सिटी में भी कह सकते तो एक all values I don't have time to explain completely the sovereignty democracy secularism socialism सेक्युलरिज्म क्या होते हैं एक मैं बात के मैं बात से बात कर व्हाट इज सेक्युलरिज्म बिकॉज़ सेक्युलरिज्म द मेजर अटैक सेक्युलरिज्म ह्यूमन प्रैक्टिस के लिए मैं बोल अब इनका प्रैक्टिस के लिए मैं कर व्हाट इज सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म इज one human being respecting another human without any meta category capturing the relationship with religion with caste with any other meta category అంటే పైన ఉండే మతం కానీ కులం కానీ ఇవన్నీ కూడా మన మన మధ్యన ఉండే మానవ సంబంధాన్ని అవి ధ్వంసం చేయకూడదు కనుక ఒక మనిషిని ఇంకో మనిషి గౌరవించి ప్రేమించేటువంటిది సెక్యులరిజం రాజ్యము రిలీజియన్ రాజ్యం దూరం ఉండాలన్నా అనేది సరే అదొక చర్చ religion state should maintain equidistant with all religion that's one part but suppose you are a secularist you claim that you are a secularist మనం సెక్యులర్ అని మనం అనుకున్నప్పుడు మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి మన ప్రవర్తన అంత ముస్లిమా ఆయన మహిళనా ఆయన దళితుడా ఆయన అదా ఆయన ఇదాని కాకుండా ఆయన మనిషి ఈ చైతన్యంలో ఇది 100 సంవత్సరాలు 1000 సంవత్సరాలు కులమని ఏవైతే వచ్చాయో ఈ చైతన్యం నుంచి బయటపడి మన మనుషులందరినీ మనుషులుగా చూడమనేది సెక్యులరిజం ఇది మనం ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు మన జీవితంలో అది మనం ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు దానికి కొంత స్ట్రగుల్ చేయవచ్చు మేము స్ట్రగుల్ విత్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఆ పోరాటం మనతో మనం చెయ్యాలి చరిత్రలో మన దాంట్లో మనకి అంతా ఈ అంటగట్టింది మన చరిత్ర కనీసం మన జనరేషన్ అయినా మీ జనరేషన్ యంగర్ జనరేషన్ మీరు వచ్చే జనరేషన్ కి ఇచ్చే వాల్యూస్ ఏవైతున్నారో భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చిన విలువల కంటే ఉన్నతమైన విలువలు ఇవ్వాలి we should pass on higher values to the next generation आज आप जो है जो नई पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है उनको क्या आप सिखा देते हैं क्या वैल्यूज देते हैं ऐसा समाज में दे इससे हमको उन्नति करनी है समाज जो है बदलना है ये बदलने वाले जो है हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आज जो रूलिंग क्लासेस का अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है वी आर सेविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट मेयर द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन institutionalization of values respect for values expanding the values giving new values should be the philosophy that the philosophy of constitution we have to take it forward with this broad introduction that why there is attack on the therefore we should fight for the values of the constitution because that is the constitution we should fight against the neoliberalism because that is what is contributing to the destruction we should fight for the saving of the institution we should fight for saving democracy democratic values we should save all these things not only for ourselves but for future generations भविष्य का जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए भविष्य तराल पड़ता है ఈ విలువలను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విలువల మీద ఎక్కడ దాడి జరిగినా దాన్ని ప్రతిఘటించవలసిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ఈ భారత్ బచావ్ మీన్స్ సేవ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ భారత్ సేవ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా సేవ్ ది రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా సేవ్ ది ఆదివాసీ సేవ్ ద మైనారిటీస్ and build such a society which can live harmoniously
a society which can live together, సామాజిక న్యాయం కొరకు, సామాజిక సమానత్వం కొరకు, సహజీవనం కొరకు మనం జీవించవలసిన అవసరం ఉందని ఈ విలువల్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోవడమే ఇవాళ మన బాధ్యత అంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రుడికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. Friends, now we have two important guests from Delhi. One is actually Deepankar Bhattacharya, National General Secretary of CPML Liberation Party. Please request you, sir, please come to the dais. Next, I request Rajesh ji, he is from AICC, All India Congress Committee, Chairman, SC. You are. I'm asked to preside over the first session of second day today. There are a good number of speakers there, and you just heard Mr. Hargopal. The rest of the speakers are Raju, Dimmi, CC, member of CPIML Liberation, is very much present here, and Sanju Walia, Vanchara Ekta Manch, Haryana se he is also ready to speak to you, and Deepankar Bhattacharya, again CPIML Liberation, right? And Rajesh also, Chairman, SC Department, All India Congress Committee. They are all very much present on the day. After Professor Hargopal, now may I request Deepankar Bhattacharya from CPI Liberation to speak. Mr. Hargopal, other friends on the stage, Dr. Gopinath, and all of you participating in this Bharat Bachao conference. At the outset, let me extend my warm greetings to all of you and wish your conference a very success. मुझे पता चला कि कल शायद आप लोगों को इस कॉन्फ्रेंस करने में भी दिक्कत आ रही थी, and you have to go to the High Court to get permission for holding this conference. और इसी से पता चलता है कि भारत को बचाने की जरूरत क्या है। ये कॉन्फ्रेंस करेंगे एक हॉल के अंदर, और भारत को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, और इसके लिए भी हमें अगर कोर्ट से जाकर के परमिशन लेना पड़े। पता चला कि होम मिनिस्ट्री को सब चाहिए, कौन कौन आ रहे हैं, उनका पता क्या है, तो पूछेंगे कि आधार कार्ड का नंबर क्या है, पैन कार्ड का नंबर क्या है, सब बताओ तब हमें देंगे। तो ये जो पूरे देश में स्थिति बनी है, मेरे ख्याल से इसी के खिलाफ देश को बचाने के लिए हम लोग तय करते हैं। I was just looking at the slogans, the backdrop. So this is BJP RSS corporate combined. तो हम सबके सामने ये स्थिति बहुत साफ है। जिस समय आज से 30 साल पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया, मेरे ख्याल से वो एक टर्निंग पॉइंट था और पूरे हिंदुस्तान को बात समझ में आ गई थी कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। Of course, many people thought that it was just the question of a mosque and a temple. एक मॉस्क को गिरा करके टेम्पल बनाना चाहते हैं, लेकिन उसी समय बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि नॉट जस्ट अबाउट ए मॉस्क एंड ए टेम्पल, दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ करके वो बताना चाहते हैं कि इस देश में हमें जो मर्जी है हम करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, सिस्टम वो देखते रह जाएंगे, हमें जो करना है हम उस काम को करेंगे।
So that was the moment of arrival, and many of us we started using the term communal fascism right after the Babri Masjid demolition, and even before that with the Ram Janmabhoomi campaign and Hardwar Rath Yatra. तो अगर 30 साल में हम देखें तो उसके नए नए डायमेंशन हमारे सामने आए। गुजरात जेनोसाइड हमने देखा और उस पूरे जेनोसाइड के आधार पर एक मॉडल बना, इसको कहा गया गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल इज नथिंग, इट्स अ मॉडल फाउंडेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ए जेनोसाइड, ऑन द इम्प्यूनिटी ऑफ ए जेनोसाइड। और जो इस बार के गुजरात चुनाव में खुल करके अमित शाह ने भी कहा कि हमने गुजरात में जो जनसंघर्ष हुआ उससे वी हैव एंश्योर्ड लास्टिंग पीस इन गुजरात। हमारी शांति वो जनसंहार पर आधारित शांति। और उस पूरे चुनाव के दौर में हमने देखा कि जब हम देश में आजादी के 75 साल मना रहे थे तो उस दिन 15 अगस्त के दिन हमें ये देखने को मिला कि बिल्किस बानो के जो उनके परिवार के मर्डरर, उनके गैंगरेप करने वाले लोग जिनको सजा मिली थी, देश में आमतौर पर जितने दलितों के जनसंघर्ष हुए शायद ही किसी को सजा मिली, आमतौर पर किसी को सजा मिलती है। तो जो चंद गिने चुने लोगों को सजा मिली थी, ऐसे लोगों को जेल से बरी करवा करके बाहर ले जा करके प्रीमैच्योर रिलीज दे करके और उनको हीरो का वेलकम दिया गया। तो बहुत संदेश बहुत साफ था कि क्या करना चाहते हैं। तो अब हमारे सामने वो जो गुजरात मॉडल, गुजरात जेनोसाइड, दुनिया के हिंदुस्तान का मोदी के पक्ष में खड़े एक एक करके उसमें शायद बाहर रहा। अडानी तो अभी हम लोग नाम सुन रहे हैं, दादा भी थे, बानी भी थे, सारे लोगों ने वाइब्रेंट गुजरात का नारा लगाया और ये कहा कि नरेंद्र मोदी अब इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जी बन गए। 14 से आज हम 23 में आ गए और इसमें जो भारत के फाशीवाद अब है वो अब हमारे सामने बहुत खुल करके दिख रहा है, खुल करके। इसके लिए बहुत कोई थ्योरेटिकल एनालिसिस उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें लगता है कि अब डे टू डे जो हमारा एक्सपीरियंस है तो हम जो देख रहे हैं हमें एक बात समझ में आ रही है कि fascism is not just a cruel government. It's not just an authoritarian government which runs on the basis of draconian laws. ये सिर्फ इतना नहीं है। Fascism जो है वो स्टेट का इस्तेमाल करके सोसाइटी को बदल देना चाहता है। जैसे हम जो क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग भी समाज को बदलने की बात करते हैं, फासीवाद भी समाज को अपने हिसाब से पीछे धकेलने की बात करता है। और इसीलिए आज हम जो देख रहे हैं, एक तरफ स्टेट है, स्टेट पावर, दूसरी तरफ आप इसको मैं कहता हूं स्ट्रीट पावर, स्ट्रीट पावर जो पूरे संघ ब्रिगेड का स्ट्रीट पावर। तो स्टेट पावर और स्ट्रीट पावर ये दोनों का एक तरीके की जुगलबंदी चल रही है। इसको अगर इकोनॉमी की भाषा में कहें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट आर्मी है, प्राइवेट वायलेंस है और उसके साथ साथ पूरी स्टेट उसके साथ खड़ा है। और ये स्टेट और स्ट्रीट में कभी स्टेट आगे आता है, स्ट्रीट थोड़ा पीछे रहता है, कभी स्ट्रीट आगे आता है, स्टेट उसके पीछे रहता है। जैसे जब मॉब लिंचिंग हो रही थी पूरे देश में, हर जगह अचानक बाढ़ सी आ गई तो उसमें पूरे मॉब दिख रहा था और स्टेट थोड़ा पीछे था। और इस वक्त आप जो देखेंगे इसमें स्टेट और स्ट्रीट का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, स्टेट दिख रहा है, बिल्कुल रेड चल रहा है, सारे अपोजिशन लीडर्स के घर पे जाकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई उसके पूरे छापे पड़ रहे हैं और सबको जेल में डाला जा रहा है। नीचे आप चले जाएंगे तो बुलडोजर से लोगों का घर ढहाया जा रहा है। ये दोनों, ये रेड राज और बुलडोजर राज, ये दोनों इंडियन स्टेट के बिल्कुल अभी समय का उसका जो पावर है वो दिख रहा है। और इसी के साथ साथ त्रिपुरा में चुनाव हो गया। चुनाव किसी तरह चुनाव के समय लगा कि इस बार लोगों को वोट डालने का थोड़ा मौका मिला। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जैसे ही बीजेपी फिर से उसका 11% वोट घटे, 11 सीटें कम आई, लेकिन तब भी सरकार उसकी बन गई। और जैसे ही सरकार बन गई तो गुजरात में आप देखें, अभी त्रिपुरा में आप देखेंगे एक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन गया था पोस्ट इलेक्शन वायलेंस उसका जायजा लेने के लिए, अब उनके ऊपर हमला कर दिया।
ये त्रिपुरा में चल रहा है। तो देश में इस समय ये जो फासिस्ट हमला है, हमें लगता है कि इसी के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे देश में एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी, हमने अभी 11th पार्टी कांग्रेस, we held our 11th party congress in Patna, and we also had the same theme. Same, we had a rally, Save Democracy, Save India, on the 15th of February. Then we had the party congress, in which we invited many left parties. We even invited some opposition leaders, not left opposition leaders, in a convention to build opposition unity in defense of the constitution and democracy. तो मैं ज्यादा बात तब का नहीं लेना चाहता हूँ, संक्षेप में दो बातें करके मैं खत्म करूंगा कि एक, ये जो भारत में फासीवाद है, इसके जो सोर्सेस ऑफ पावर वो हमें दिख रहा है, एंड आई कॉल इट द पावर ऑफ 4 C's, 4 C इसमें दिख रहा है। एक सी तो ऑब्वियस है, कॉर्पोरेट दिख रहा है, पूरे अदानी अंबानी के पूरे पावर, पूरी इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन पूरे देश को बेचा जा रहा है। खेती को भी अदानी अंबानी को देने की पूरी कोशिश चल रही थी, किसानों ने किसी तरह कानूनों को रोका, लेकिन ये कोशिश जारी है। तो कॉर्पोरेट पावर एक सी वो है। एक सी बहुत साफ है, जो कम्युनल, देश में बिल्कुल माइनॉरिटीज को, और वो माइनॉरिटीज कुछ भी हो सकता है, वो माइनॉरिटी मुस्लिम तो है ही रिलीजियस माइनॉरिटी, बिगेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, वो अपने आप में भारत के जो मुस्लिम आबादी है वो दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन। इसलिए हमारा इतना बड़ा देश है, इसीलिए हम माइनॉरिटी कह रहे हैं, अदरवाइज इट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी। लेकिन ये माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है। अभी जो आपने देखा होगा फेक वीडियो चला, कि पता चला कि बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, और अभी भंडा फूट गया है। ये वीडियो वाज अ फेक वीडियो, एंड द वीडियो शूटिंग वाज डन इन पटना। पटना में वीडियो शूटिंग करके उसको कहा गया कि तमिलनाडु का वीडियो है। तो ये करना क्या चाहते हैं, कि इनको पता है कि तमिलनाडु में फिलहाल उनको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अगर तमिलनाडु को डिमोनाइज करके, उसको विलेन बना करके, और तमिल के खिलाफ अगर हिंदी नेशनलिज्म, हिंदी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को हम अगर इन्वोक कर सके, और उसमें हमको बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पूरे नॉर्थ इंडिया में व्यापक मजदूरों का हम मसीहा बन जाए, जिन मजदूरों का हमने लॉकडाउन तोड़ करके प्रताड़ित किया, इनको पैदल चलने के लिए मजबूर किया, उन्हीं का हम मसीहा बन जाए। अच्छा, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी असम में आप जाएंगे तो देखेंगे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के रूप में भी बहुत सारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी में भी नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट क्रिश्चियंस बट सिख्स, लॉट ऑफ माइनॉरिटीज आर देयर। इवन यहाँ दिल्ली में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर थे, जो उन्होंने जो बुद्धिज्म को अपनाया, अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए, वो बहुत सारे लोगों ने बुद्ध बौद्ध धर्म का अपनाया, तो उनके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया गया है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा आम आदमी पार्टी सरकार से। तो वो हर रिलीजन, नॉन हिंदू जितने भी रिलीजन है उनके खिलाफ बना रहे हैं। तो ये कम्युनल है। इसके साथ दो और है, एक है कास्ट। ये एक तरह से टेलर मेड है फॉर दिस होल फैसिस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर हम सब लोग जो कास्ट सिस्टम को समझते हैं, और जिसके चलते बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत साफ साफ कहा था कि इफ इंडिया इज एबल टू बिकम अ हिंदू स्टेट, हिंदू राष्ट्र, then that would be the biggest calamity to befall us. इसलिए उन्होंने कहा था कि ये जो उनका एक्सपीरियंस है, लिव्ड एक्सपीरियंस है भारत में दलितों का, सदियों से दलितों का, पिछड़ी जातियों का, कि ये दिस इज अ सिस्टम ऑफ स्लेवरी, एक सिस्टम ऑफ स्लेवरी है जहां लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब एनाथेमा। तो वो कास्ट सिस्टम वो एक तरह से भारत में बहुत मजबूत हो गया है, और उसका भरपूर इस्तेमाल ये भारत के फासीवादी कर रहे हैं। और चौथा सी है कोलोनियल, जो देश अभी भी पूरा कानून, पूरा ढांचा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का भी, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको अम्बेडकर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, वी आर सिटीजन्स, हम सिटीजन्स हैं, हम किसी के प्रजा नहीं है, किसी के भक्त नहीं। तो ये इस देश में
वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस की जगह पर जो कॉलोनियल रूल था उसी को रोकने की कोशिश करेगी। तो ये जो 4C उसका पूरा कंसेंट्रेटेड पावर वो हमें दिख रहा है भारत में फांसीवादी ऑफेंसिव के रूप में। जाहिर सी बात है इसके खिलाफ बहुत बहुत लंबी और बहुत बड़ी लड़ाई चाहिए, बहुत लंबी बहुत बड़ी लड़ाई। लंबी हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर सोच लीजिए कि अगर 24 के चुनाव में हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि 24 के चुनाव में मोदी सरकार से हिंदुस्तान को छुटकारा मिले, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको एक चुनाव में छुटकारा मिल जाए तो क्या हमें भारत में फांसीवाद से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी हमने देखा कि अमेरिका में ट्रंप चुनाव हारे थे, लेकिन उनकी पूरी कोशिश थी ये पूरा कू करके वो सत्ता में बने रहे। अभी हमने ब्राजील में देखा बोल्सोनारो ने चुनाव हारा, लेकिन उनके सारे लोग उस पूरे चुनाव को नकारते हुए कोशिश कर रहे थे कि हम बने रहे। कि अगर इनको चुनाव तो इनको हराना अपने आप में कठिन बात है कि चुनाव किस तरीके से होगा, क्या होगा, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी ये जो उनके पास अभी 40% वोट है, तो वो 40% वोट उसके आधार पर वो ऐसे वायलेंस करेंगे इस देश में, वो उस हार को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अकेले चुनाव से बात बनने वाली नहीं है और लंबी लड़ाई चाहिए, व्यापक लड़ाई चाहिए, हर मोर्चे पर लड़ाई चाहिए। इसमें जो देश में जरूर जब तक पार्लियामेंट है, जब तक चुनाव हो रहा है, हम सब लोग ये चाहते होंगे कि भाई अपोजिशन की बड़ी यूनिटी बने, हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं। इस समय 3, 4, 5 फ्रंट अलग अलग बनाने के दौर नहीं है, ये ऐसा दौर है जिस दौर में एक कारगर सिंगल नेशन वाइड एक पूरा पैन अपोजिशन यूनिटी बननी चाहिए। हम तो तमाम पार्टियों से, हमने अपनी पार्टी महाधिवेशन से भी कहा, लेफ्ट पार्टीज है, तमाम रीजनल पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी है, सभी पार्टियों को सोचना होगा कि जब द कॉन्स्टिट्यूशन इज एट स्टेक, पार्लियामेंट इज एट स्टेक, वो पॉलिटिकल पार्टियां रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी देश में। अब ये खुलेआम कह रहे हैं कि देश में एक ही पार्टी सर्वाइव करेगी, बीजेपी। ये जेपी नड्डा ने पटना में कहा। अमित शाह खुलेआम कहते हैं वी आर हियर टू रूल फॉर 50 इयर्स, हम कोई 5 साल के राज करने के लिए नहीं आए हैं, अगले 50 साल राज करेंगे। तो ये जो एक सिंगल पार्टी स्टेट, दिस सिंगल पार्टी स्टेट ये कंप्लीट फासिस्ट स्टेट, एक सिंगल पार्टी रूल रोकने की कोशिश है, तो ऑल अपोजिशन पार्टी को आना होगा। लेकिन ये पार्टीज के हिसाब किताब अपने होते हैं, कौन कब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किस राज्य में क्या कर रहा है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। तो इसलिए पार्टीज दे हैव देयर ओन डायनामिक्स। व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रोड्यूस द पावर ऑफ पीपल्स मूवमेंट। उस पावर को अगर हम बढ़ाएंगे तो हम माहौल बदल सकते हैं। किसान आंदोलन ने माहौल बनाया देश में। अब ये बात अलग है, किसान आंदोलन जो माहौल बनाया उसका फायदा पंजाब में आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी का शायद किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, वो कोई किसान आंदोलन वाली पार्टी नहीं थी, लेकिन किसान आंदोलन ने माहौल बनाया, पंजाब में सरकार बदल गई, आम आदमी पार्टी की सरकार। इसलिए पॉलिटिकली क्या होगा नहीं होगा आप बहुत कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम एक माहौल बना सकते। हम आपसे ही अपील करने आए हैं और ये एश्योरेंस देने के लिए आए हैं कि ये माहौल देश में बन रहा है, किसानों ने बनाया। अभी हम देख रहे हैं कि देश के सारे मजदूर, सारे ट्रेड यूनियन एक साथ हैं लगभग बीएमएस को छोड़ करके, और उसमें भी जितने सेक्टर्स हैं, सिर्फ पुराना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सैनिटेशन वर्कर्स, स्कीम वर्कर्स, मिड डे मील, आशा, आंगनबाड़ी की हमारी महिलाएं, तो ये जो देश के न्यू वर्किंग क्लास है, गांव में, शहर में, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, उनके सारे मुद्दों को लेकर के बिल्कुल उसी तरह का आंदोलन होना चाहिए जैसे किसानों ने किया। जैसे रोहित वेमुला के सांस्थानिक हत्या, इंस्टीट्यूशनल मर्डर, उसके बाद जो पूरे देश में यूनिवर्सिटीज में एक माहौल बना स्टूडेंट यूथ मूवमेंट का, जैसे अग्निपथ स्कीम के बाद एक यूथ रिवॉर्ड देश में दिखा, तो ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सवाल है, एजुकेशन का बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल इसी तरह आज देश में बड़ा मूवमेंट हो सकता है। जैसे दिल्ली में 2012 दिसंबर में निर्भया रेप के बाद एक एंटी रेप मूवमेंट शुरू हुआ, और उससे हम कहेंगे पूरे देश में एक वुमेन्स मूवमेंट में एक अवेकनिंग आया, एक असर्शन का दौर आया। हम ये चीज तो हर मोर्चे पर, अभी जिस तरह से हमारे उत्तराखंड के जोशी मठ के साथी लग रहे हैं, ये पूरा शहर ये हिंदू की बात करते हैं, और हिंदू सिविलाइजेशन के हिसाब से भी देखिए तो बहुत पुराना शहर है, और जोशी मठ जो इनके कॉर्पोरेट लूट के चक्कर में अब वो शहर खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है।
तो एनवायरमेंट का सवाल, क्लाइमेट का सवाल, तो हर सवाल पर बड़े मूवमेंट की जरूरत है, बड़ी एकता की जरूरत है और बहुत जबरदस्त कुल मिला के अगर हम इसको कहें, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अनदर फ्रीडम मूवमेंट, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। बहुत सस्ते में ये इतनी बड़ी हमारे सामने विपद है, इतने बड़ा डेंजर है, तो हल्के में हम इससे नहीं निकल सकते। इसके लिए वी विल नीड टू पूल ऑल आवर एनर्जी, ऑल आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया अक्रॉस द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। हम में से बहुत सारे लोग मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हैं, बहुत सारे लोग गांधीयन होंगे, बहुत सारे लोग अम्बेडकराइट हैं, बहुत सारे लोग फूले पेरियर को मानते हैं। तो ये सब for me all these are for the sake of democracy, for the sake of the constitution, for the sake of India's existence. These are all compatible ideologies. These ideologies have differences, and there may be sharp ideological struggle at some point. But right now, I think this is the time when we need a big fusion, big convergence, and all of us we are doing similar things, compatible things, and if we can cooperate with each other, pool our energy resources together, surely we can create a second freedom movement which will free India. और जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, हमारे बहुत सारे लोग पूछते हैं ये बचाओ बचाओ कब तक कहते हैं, सिर्फ ये क्या है डिफेंसिव मूवमेंट है? आई डोंट थिंक इट्स अ डिफेंसिव, क्योंकि 77 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट थोड़ा सा ब्रॉडन हुआ, थोड़ा डीपन हुआ। इट इज द पोस्ट इमरजेंसी पीरियड जहां हमने देखा रिजर्वेशन का भी एक्सपेंशन हुआ, मंडल कमीशन आया, जहां हमने देखा कि बहुत सारे कानून बने, जो पंचायती राज के कानून बने, जहां हमने देखा कि ये मनरेगा जैसा कानून, आपके राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून, फॉरेस्ट राइट जैसे कानून, तो एक तरह से डेमोक्रेसी का थोड़ा एक्सपेंशन, थोड़ी डीपनिंग हुई। ये बात अलग है कि उसको रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। तो ऑब्वियसली आज जब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है तो वी आर सेइंग भारत बचाओ, लेकिन द इंडिया दैट विल इमर्ज फ्रॉम दिस एंटी-फैसिस्ट स्ट्रगल by defeating fascism will surely be much more democratic, much more progressive, much more inclusive, and much more forward-looking, forward-moving India. और उसके लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं। ये देश की पूरी विरासत और ये सब कुछ जैसे इनके पास फोर्स है, हमारे पास भी है। हमारे पास आजादी के आंदोलन की विरासत है, हमारे पास आजादी के आंदोलन से भी पहले अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें, कास्ट सिस्टम के खिलाफ एंटी कास्ट लड़ाई की बात करें, वो लड़ाई भी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। पैट्रियार्की के खिलाफ महिलाओं की आजादी, सम्मान, बराबरी की बात करें, वो लड़ाई भी बहुत पुरानी है। ये कोई 2-5 साल की लड़ाई नहीं है, सदियों से चलने वाली लड़ाई है। तो हमारे पास भी लंबा इतिहास है, उसको लेकर के हम लोग कर पाएंगे। आप लोग इस कन्वेंशन को आयोजित कर रहे हैं और गोपीनाथ जी से पटना में भी मुलाकात हुई थी और यहाँ भी पहले भी एक कार्यक्रम हुआ, हैदराबाद में जो कार्यक्रम हुआ, हमारे साथी कॉमरेड क्लिफ्टन वहां पहुंचे थे। हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं इस कोशिश में, हम सब लोग साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ लड़के भारत की बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच दीपक। సంచార జాతుల హక్కుల పోరాట కమిటీ నుంచి సంజీవ్ వాలియా here. I request Sanjeev Walia, Sanchara Ekta Manch from Haryana State. नमस्कार, नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो डॉक्टर गोपीनाथ जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो उम्मीद लोगों की मर रही थी, उस उम्मीद को, उम्मीद की एक किरण जगा दी है, इसलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। मैं संजीव वालिया, भाईचारा एकता मंच हरियाणा से हूँ। हम लोग पिछले कई सालों से हरियाणा के अंदर इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए और ये कह लीजिए इंसानियत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जब एनआरसी आंदोलन आया
तो बहुत सारे लोग डरे हुए थे। हमारी टीम ने आगे आके न सिर्फ उस आंदोलन को बहादुरी के साथ चलाया, आरएसएस को आइडियोलॉजिकली भी गांव गांव जाके डिफीट किया। हमारे साथियों ने हर लिहाज से उनको जवाब दिया, जिस भाषा में भी वो समझना चाहते थे। सभी साथियों को लाके हमारे मुस्लिम भाई भी काफी संख्या में साथ आए। शुरुआत में उनको जरूर डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे काफिला आंदोलन होने शुरू हुए और काफी संख्या में लोग बाहर निकल के आने शुरू हो गए, हमने उन लोगों के दिलो दिमाग से जो सत्ता का खौफ था वो काफी हद तक निकाल दिया। और वही काम भारत बचाओ की जो टीम है, जो पूरे देश में इस सत्ता ने, इस आरएसएस ने जो खौफ पैदा कर रखा है, उस खौफ को मिटाने के लिए ये टीम काम कर रही है। इसलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन मैं इसके साथ साथ कुछ चीजें सलाह के तौर पे जोड़ना चाहूंगा। अभी तक बहुत सारे ज्वाइंट फ्रंट बने और इस तरह के कार्यक्रम आए, इंटेलेक्चुअल तौर पे बहुत अच्छा दिखता है, लगता है कि हाँ कुछ होगा, लेकिन अभी तक व्यवहारिक रूप में हम धरातल पर नहीं जा पाते, जिसके कारण लोगों की उम्मीद टूटने लगती है। जरा से भी कोई चिंगारी दिखती है तो लोग बाहर निकल के आते हैं, तो लगता है यार कुछ बदलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सलाह है, इसको व्यवहारिक रूप भी देने की कोशिश करें। जैसे इसको गांव गांव तक लेके जाए, बहुत सरल भाषा में, जो भी दीपांकर जी ने भी बताया, प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि सेकुलरिज्म है क्या, ये फासिज्म है क्या, इसको बहुत सरल भाषा में समझाया जाए, बताया जाए, लिटरेचर के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से। आम लोगों को, जो एक्टिविस्ट है या मार्क्स की, लेनिन की विचारधारा में काम करते हैं, उनको पता है कि फासिज्म है क्या। लेकिन जब हम लोग आम लोगों के बीच जाते हैं तो उनको तो समझ नहीं आती। उनको बुलडोजर जब चलता है या मुस्लिम भाइयों का नुकसान होता है वो तो समझ आता है, लेकिन जब उनके रोजगार पे, उनकी शिक्षा पे बुलडोजर चल रहा है, वो चीज नहीं दिखती। तो वो किसी भी माध्यम से, छोटी छोटी टेलीविजन के माध्यम से लोगों को जो हम बात यहाँ कह रहे हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल साथी कह रहे हैं, वो बात आसानी से उनके दिमाग पे उतार दी जाए, ऐसा कुछ प्रोग्राम भी रखा जाए। युवाओं की टीम, खासकर युवाओं को जहां भी आप, जिस भी टीम में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, कुछ कंक्रीट प्रोग्राम होना चाहिए। हम ये तो कह रहे हैं कि भारत बचाओ, संविधान बचाओ, अच्छी बात है, क्योंकि संविधान में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसी से कंप्लीट नहीं होगा। लोग क्यों आएंगे? आम गरीब आदमी क्यों आएगा? वो सुबह दिहाड़ी के लिए निकलता है, वो सोचता है यार मैं भारत बचाने जाऊंगा तो मेरे साथ रोटी नहीं मिलेगी, तो उसका भी कुछ प्रोग्राम उसमें नजर आए, उसको लगे यार ये तो मेरी मजबूरी की बात हुई है। एक गरीब किसान को लगे तो मेरी जमीन जो छीनने के लिए कॉर्पोरेट की आरएसएस लग रही है, इसमें तो मेरी बात है। जो शिक्षित युवा है वो कई तरह से प्रताड़ित होता है। वो शिक्षा लेके अपनी कंप्लीट कर लेता है, एमएससी एमएड करने के बाद उसके घर वाले, उसके माँ बाप उसको जब कहते हैं या फिर सारा खर्चा तो हमने कर दिया और कुछ कमा के तो ला, वो ये कहते हैं कहां से लाऊं कमा के, कहां जाऊं? तो जब युवा की कोई ये टच करेगा तभी तो कोई साथ आएगा ना। तो ये चीजें हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, इसको थोड़ा छोटे छोटी चीजें हैं जिनसे हम लोगों के बीच जाए, जो तो अट्रैक्ट करती है, हमारे साथ जुड़ेंगे लोग। किसान आंदोलन जब चल रहा था, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं यार तुम लोग मजदूरों में काम करते हैं, मजदूर साथी कम आ रहे हैं।
लेकिन जब हम मजदूरों में जाते थे तो सवाल पूछते थे, यार हमारी मांग क्या है इसमें? तो इसलिए भारत बचाओ अच्छा प्रोग्राम है, अच्छी चीज है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हर वो चीज दिखनी चाहिए और व्यवहारिक रूप में होती हुई नजर आनी चाहिए, ताकि जब हम गांव में जाएंगे तो गांव के लोगों का हम छाती ठोक के कह सके तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। कुछ एक चीज और है कि जैसे कि आरएसएस या बीजेपी अपने आप को कहती है कि गुजरात हमारी प्रयोगशाला है, तो हमें भी एक प्रयोगशाला के तौर पर कुछ जगह को चिन्हित करना चाहिए और वहां यह स्थापित कर देना चाहिए कि ऐसे भारत बच सकता है, ऐसे संविधान बच सकता है। एक बहुत सारे साथी जब हम इस बात को प्रचारित कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर इस तरह का एक सेमिनार हो रहा है, चलो वहां चले, तो कुछ साथियों के दिमाग में ऐसा अच्छा यार बीजेपी को हटा के तुम कांग्रेस को लाना चाहते हो क्या? ये भी क्लियर होना चाहिए। ये तो निश्चित है कि हम बीजेपी आरएसएस को गिराना चाहते हैं, दबंग करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद कौन, किसको? लोग तो सवाल पूछेंगे ना इस बात का। तो हमें क्लियर होना चाहिए, स्पष्टता बिल्कुल होनी चाहिए। हम अपने देश के युवाओं को बचाने के लिए, उनका भविष्य बचाने के लिए, महिलाओं की आजादी को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, जो हेल्थ है उसको बचाने के लिए, सब कुछ कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको बचाने के लिए ऐसा कुछ संदेश हो जो लगे वास्तव में ये हमारी लड़ाई है। इस तरह से कुछ कार्यक्रम बनेगा तो निश्चित ही हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि मेरे से बहुत ज्ञानवान लोग बैठे हैं, प्रोफेसर हरगोपाल जी हैं और दूसरे साथी हैं, तो मैं उनकी तरह उतना ज्ञान तो नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज जरूर है कि जुनून है कुछ का गुजरने का। हरियाणा में जो भी हमारी आप ड्यूटी लगाएंगे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और जीत की तरफ बढ़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। Thank you, Sanju. Now I request Raju Ji. Thank you. Now, All India Congress Committee SC Department Chairman Rajesh is requested to speak. आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। करंट से बोलना चाहिए, तेज बोलना चाहिए, क्योंकि क्रांतिकारी नारा है। और जब हम फांसीवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी आवाज में दम होना चाहिए, ताकि उन ताकतों को पता चल सके कि हम एकजुट हैं और किसी भी संघर्ष के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री डॉक्टर गोपीनाथ जी को, प्रोफेसर हरगोपाल जी को, मूलचंद जी को, टीना रेड्डी जी को और तमाम यहाँ पर भारत बचाओ इस आंदोलन के आयोजककर्ताओं को मैं अपनी मुबारकबाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि भारत बचाओ ये जो आंदोलन है आपका, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आपके समर्थन में है, क्योंकि हमारा भी जो मिशन है भारत को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, वो किसी से छुपा नहीं है। अभी पिछले महीने ही पूरे देश में जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने लगभग 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर एक संदेश दिया, जो जन आंदोलन खड़ा किया, जो जन जन की आवाज उठाई, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसका जिस तरीके से रिस्पांस पूरे देश में मिला, उससे लगा कि आज देश के लोग जो हैं प्रताड़ित हैं, दर्द में है,
और उनके दर्द को मरहम लगाने का काम जो भारत जोड़ो यात्रा ने किया, ये भारत बचाओ आंदोलन के समर्थन का एक उदाहरण भी है। मैं जब यहाँ पर आया और जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पढ़ा वो था कि फांसीवाद को किस तरीके से खत्म किया जाए। फांसीवाद का जब हिटलर, सावरकर, गोवलकर और आज के संदर्भ में मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी का नाम फांसीवाद के साथ में जुड़ा नजर आता है। आरएसएस की विचारधारा ठीक उसी तरीके की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उसी तरीके की वो उनका विमर्श है कि जिस तरीके से हिटलर ने सभी जो इंस्टीट्यूशंस थे उसके ऊपर कब्जा करके उनको गुलाम बना के अपनी हुकूमत की और एक माइनॉरिटी के खिलाफ उन्होंने जो लोगों को भड़काया, उनके सेंटिमेंट्स को, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके जिस तरीके से ज्यूज के खिलाफ उन्होंने एक पूरे देश के अंदर एक हेट कैंपेन चलाया, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस माइनॉरिटीज के खिलाफ, खासतौर पे मुस्लिम्स के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ जो ये एक आंदोलन चलाते हैं, बीच बीच में लिटमस टेस्ट करते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आरएसएस की मंशा क्या है। वो देश के संविधान को खत्म करके जो देश के अंदर वर्ण व्यवस्था को लाना चाहते हैं दोबारा से, जिसके अंदर आप लोग जो यहाँ पर बहुजन समाज के हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, जो संविधान ने आपको यहाँ पर कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया है, उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। और अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमको दिया है। तो भारत बचाओ आंदोलन की जब आप बात करते हैं तो सीधे तौर पे संविधान को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि भारत की जो आधारशिला है, जो विचारधारा जिसके ऊपर भारत स्थापित है, वो सेक्युलरिज्म की बात करता है। वो बात करता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम लोग, और ये लोग जो फासिस्ट आइडियोलॉजी है वो बात करती है कन्फॉर्मिटी इन यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये लड़ाई जो है संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है। हमारे बीच में प्रोफेसर रतनलाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, और बहुत सारे साथी हैं। मैं उन लोगों को भी यहाँ पर, मैं आप लोगों को शाबाशी भी देता हूँ कि आपको उत्साह है कि बावजूद इसके जो आयोजकों को यहाँ पर पिछले दिनों इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मुश्किलें पैदा हुई, जिस तरीके से उनको रोका गया, आपको बड़े शर्म की बात है और आप लोग उसके लिए डटे रहे। मैं यहाँ पर खासतौर पे डॉक्टर गोपीनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आप उन मनुवादी ताकतों के से डरे नहीं, फांसीवादी ताकतों से डरे नहीं, और आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बहुत सफल कार्यक्रम है। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो एजेंसीज हैं उनके लोग बाहर सिविल ड्रेस के अंदर बाहर खड़े हुए हैं, वो नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इन लोगों से हमें डरना नहीं है, ये लोग बहुत डरपोक किस्म के लोग हैं। और आप लोगों के रगों में तो पेरियार का, ज्योतिबा फुले का, बिरसा मुंडे का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आपकी रगों पर हम लोग इनकी गीदड़ भक्ति से डरने वाले नहीं हैं। ये आवाज संविधान को बचाने की दमदार तरीके से हर वक्त उठाई है और हमेशा उठाते रहेगी। 2 अप्रैल का आपने जो आंदोलन देखा उससे सरकार की चूल्हे हिल गई और उसके आयोजक कहीं पर कोई नजर नहीं आया, लेकिन उसके आयोजक आप लोग थे। उसको सफल बनाने वाले लोग हर वो व्यक्ति था जिसको मालूम था कि ये जो संविधान के अंदर जो कानून हमारा, जो हमें हिफाजत देता है, जो कानून हमारे को बराबरी का हिस्सा देता है, उस संविधान को खत्म करके जो हमारे ऊपर दोबारा से
राज करना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ आप लोगों ने खिलाफ लिया, आवाज उठाई और आपने देखा कि सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। किसान आंदोलन की यहाँ पे बात की गई थी, किसान आंदोलन की उसमें सीधा जागता उदाहरण है। किसानों को मैं उन संगठनों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके उस जन आंदोलन ने सरकार को मजबूर किया कि वो जो 3 काले कानून थे उनको वापस ले। उस वक्त के अंदर तमाम सारी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां